Hello everyone, this is Abir sir here. Actually, here I am to send you the solution of some of the numericals that we have already solved in our class. Some of the students were absent, and that's why I'm getting so many messages that please send us a solution of some of the questions. So, and at the same time, what I can see that students are sending me the solution, and there are lots of mistakes in the solution. So that's why I'll try to send you, and I'll try to explain you all the problems that I have given. And before starting the problem, first of all, I want to clear one thing that in every numericals, you are doing one thing that someone don't know exactly where should I use equals to and where should I use implies that. See, you can't directly replace the equal sign with the implies that symbol. This is equal sign. This is equal sign, equal, and this is implies that. You can't replace one another. मतलब कोई भी कहाँ पे जिसका मन हो रहा है वो कोई भी सिंबल दे दे रहा है. डोंट डू इट. डोंट डू इट. इक्वल रिप्रेजेंट्स, ये जो इक्वल साइन होता है ये रिप्रेजेंट्स इक्वालिटी. इट रिप्रेजेंट्स इक्वालिटी. दैट इज, सपोज आई एम राइटिंग अ इक्वेशन like 5a is equals to 100. Got it? And implies that how this logical, it's an logical consequence. It represents a logical consequence. Logical consequence means I can use this symbol only in a linear equation. That means after this equation, if we have 5a equals to 100, then I can apply implies that a equals to 100 by 5. Instead of implies that you can write or also, or we can write or either implies that. I hope this is clear to you. I have some of the solution where I can see that potential energy equals to, they have written, they are using instead of implies that, they are using implies that symbol. See, this is absolutely wrong. This is absolutely wrong. This is not an linear equation. You are just finding a value. If you have the value of mass, if you have the value of g and the height, definitely it will be either you have to find it out or you have. So you are finding a value of potential energy. At that time you don't need to input this implies that symbol. I think please clear this, the difference between equal sign and implies that, these two symbols. So let's get started. Here is the first question that we can see is that two objects of mass 5 kg and 10 kg are placed 2 meter apart. There are two bodies having mass 5 kg and 10 kg, m1, m2, and the distance between these two objects is 2 meter. Let's write the given data first. And during the time of writing given data, what we have to follow? We have to follow that all the units are in a particular system or not. मतलब देखो, m1 क्या है? 5 kg. So here the kg is the SI unit of mass. Fine. That means either you have to kept all the unit in SI or you have to kept all the unit in CGS. तो देख लेते हैं m1 जो है 5 kg है, m2 का मास दिया हुआ है 10 kg, and the distance is 2 meter. The mass, the value of g is also given 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. So what we can see that all the data, all the given data are in SI unit. Bus. Chalo. Now what we have to find? We have to find the gravitational force between them. See, what we know, the gravitational force is equals to G m1
m2 by d square. So all the data are given here. We just need to put the data and solve it. 6.67 into 10 to the power minus 11 into 5 into 10 d square टू। अब देखो इधर जी का जो यूनिट है ये मैं अलग से लिख रहा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पार केजी स्क्वायर। ये अगर दोनों मास को मल्टीप्लाई करे मतलब केजी इंटू केजी, ये भी केजी स्क्वायर ही होगा, केजी स्क्वायर इंटू, और नीचे मीटर ये दिया हुआ है मीटर, 2 मीटर, तो 2 मीटर 2 अगर स्क्वायर होगा तो मीटर भी स्क्वायर होगा, तो मीटर भी स्क्वायर है। सो ये पूरा कट जाएगा, बचा रहेगा बस न्यूटन। And what we know, the SI unit of force is Newton. Very simple. It's very simple. Now I think you can do the calculation by yourself. And what we have the value. Okay, let try to solve it. 6.67 ठीक है, अच्छा ऐसे ही रहने देते हैं इसको। 5 into 10 it's become 50 and नीचे 4 और 10 to the power minus 11। 6.67 ये 50 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 12.5 इंटू 10 to the power 11, इधर न्यूटन, ये भी न्यूटन। If I multiply 6.67 12.5, the value will be approximately 83.75 probably. Let me check. हाँ, 3.7 न्यूटन। दिस इज द आंसर। देखिए इधर इधर मैंने इक्वल्स टू करके लिखा है। आई हैव नॉट अप्लाई here the implies that symbol. I can use the here also the implies that symbol. In that case, I have to write the force. ऐसे। Now it's correct. I think I can explain it to you. Let's solve question number 2. What is given? Find the weight of a person of mass 60 kg. That means mass is given m equals to 60 kg, which is also in SI unit. What we have to find? We have to find the weight, and the value of g is also given. So first I am writing the given data. देखो पूरा जो सिस्टम है ना, कोई भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो ऐसे ही होता है। इनपुट पहले हमको इनपुट देना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद उसका आउटपुट आएगा। इनपुट प्रोसेस सॉल्यूशन, तो पहले इनपुट को लिख लो। अगर किसी को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे ना, तो कम से कम इनपुट लिखा है, प्रोसेस किया है, तो उसके लिए स्टेप मार्किंग थोड़ा ना थोड़ा मिल जाएगा। ठीक है, स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, तो फॉलो करो, बस प्रोटोकॉल फॉलो करो, मार्क्स तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखो द गिवन डेटा इज गिवन, सी द गिवन डेटा आर हियर is mass is 60 kg and g is given 9.8 meter per second square. So what we can see that all the units are in SI system. तो कोई टेंशन का बात नहीं है। Now what we know weight equals to mass into g, तो बस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। 60 का केजी ये हम अलग से लिखते हैं। देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है न्यूटन, यही न्यूटन होता है ना। मास इंटू एक्सीलरेशन, मास का ऐसा यूनिट है केजी और एक्सीलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसी को हम न्यूटन कहते हैं। तो 60 इंटू 9.8 इट बिकम्स 60 6 5880। चलो जीरो को हम निकाल देते हैं, सो द वैल्यू विल बी 588 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू कैन राइट 588 न्यूटन। कोई भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अगर किसी को याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो ऐसे ही रहने दो, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, let's solve question number 3. I have already written the given data, that is weight is given 588 newton, so I have just written 588 newton. देखो 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसका भी यही एक्सप्लेनेशन है। मतलब यूनिट को अगर हम ब्रेक करें 1 न्यूटन को, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वी कैन राइट।
ओके, सो मास निकालना है पहले। तो मास इक्वल्स टू क्या है, अगर W इक्वल्स टू m इंटू जी है, सो m इक्वल्स टू क्या होगा, W बाई जी। और देखो W का क्या है, न्यूटन, तो न्यूटन मतलब केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये W का है। और G का क्या है, G का भी सेम है, ये रेसिप्रोकल है, तो इसलिए हम उल्टा लिखते हैं इसको, ऊपर a स्क्वायर नीचे m। G क्या है, G का तो एक्सीलरेशन है ना, m बाई a स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम का होल स्क्वायर। तो ये m m कट जाएगा, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, सेकंड स्क्वायर, तो बस kg रहेगा। नाउ पुट द वैल्यू 588 by 9.8 kg. See, one thing I am telling you, if the value of g is given, that is 9.8 meter per second square, ये अगर दिया हुआ रहेगा, at that time you can take 9.8, else you can take approximately 10 meter per second square also. No issues at all. Okay, as you know that, see this problem is just reverse problem of the previous one. Question number 2 में जो हम किए थे उसका ही रिवर्स वाला है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, मास का वैल्यू आएगा 60 केजी। अगर किसी ने इधर न्यूटन लिख दिया ना, तो पूरा रॉन्ग, क्योंकि मास कभी न्यूटन में होता ही नहीं, पूरा का पूरा गलत है। लेट्स फाइंड द वेट ऑन मून। तो देखो, मास तो सेम ही रहेगा, मतलब मास विल नॉट चेंज, प्लेस टू प्लेस मास नहीं वेरी करता है, लेकिन वेट वेरी करेगा। तो इसका वेट मून में कितना रहेगा, अगर वेट मास मतलब अर्थ पे अगर वेट है 588 न्यूटन, तो मून में कितना रहेगा, 1/6। weight on moon 1/6 of weight on कहाँ पे, on earth। just do it 1/6 into 588 न्यूटन। अगर किसी को कन्वर्ट करना आता है तो करो, नहीं आता है तो ऐसे ही उसको रख दो, मतलब इट विल बी 98.8 न्यूटन। ऐसे न्यूटन से ही रख दो। किसी को अगर कन्वर्ट करना आता है, ओनली दैट टाइम, सॉरी 98.8 नहीं, 98 ही आएगा, सॉरी 98 आएगा, इट विल बी 98 न्यूटन। तो वैसे ही रख दो, कोई केजी में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 9.8 केजी, बिकॉज यू हैव टू नो वन थिंग दैट 1 kgf, इसको हम kgf लिखते हैं, इक्वल्स टू 10 न्यूटन। सो 1 न्यूटन विल बी इक्वल्स टू 1/10 kgf, और इधर कितना न्यूटन है, 98 न्यूटन। तो 1 न्यूटन अगर 1/10 होगा तो 98 न्यूटन होगा 9.8 केजी। अगर किसी को याद है, ये कन्वर्शन पता है तो लिखो, नहीं तो इधर छोड़ दो न्यूटन में, इधर केजीएफ लिख देना बस। जो था न्यूटन में था तो इधर भी न्यूटन में ही आएगा। इसको अगर यू कैन कन्वर्ट इट देन यू कैन डू इट, एल्स लीव इट, यू विल गेट द फुल मार्क्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू। गलती मत करो, रट लो मत, समझो चीज को। न्यूटन में है तो न्यूटन में ही रहेगा, कन्वर्ट कर सकते हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो। Let's solve question number 4. This is a very important question and the two parts are missing, what I can see that। देखो इधर क्या निकालना है, दो चीज निकालना है, और मैं एक काम करता हूँ, ठीक है चलो दो ही चीज निकाल लेते हैं। नहीं, इधर निकालना है फाइंड द वेलोसिटी। फाइंड द वेलोसिटी। ए स्टोन इज जस्ट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, एक पत्थर है जो ऊपर से नीचे, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इज गिवन 20 मीटर। ये जब नीचे हिट करेगा तो इसका वेलोसिटी कितना रहेगा। और एक क्वेश्चन भी रहता है इसमें, टाइम। तो हम टाइम में नहीं जा रहे हैं, हम बस इसका वेलोसिटी कितना रहेगा जब ग्राउंड पे हिट करेगा, वही हम निकाल लेते हैं। चलो, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो सेम थिंग व्हाट वी हैव टू डू, we have to first write the given data, and after that we have to check that all the data are in proper SI unit और CGS unit। तो अगर SI में है तो चलो सब कुछ SI में ही करेंगे। We always have to try each and every numericals in SI unit। ये ट्राई करना है,
नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू राइट इट, ये ट्राई करना है। एसआई में कन्वर्ट करो तो इजी हो जाएगा अगर एसआई में करोगे। तो गिवन डेटा क्या है, बस एक ही है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। बस इसका हाइट दिया हुआ है, स्टोन का हाइट इज 20 मीटर, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ g, that is acceleration due to gravity, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है। बस, तो फॉर्मूला क्या होगा? लॉज ऑफ मोशन में ना तीन फॉर्मूला है। एक है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दूसरा है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये लॉज ऑफ मोशन का थ्री लॉज है। तो फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी ये ए की जगह बस जी रहेगा, बाकी हो जाएगा। तो इधर दोनों दो डेटा है, एच और जी, तो कौन सा होगा? देखो, फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी, ये जो स्टोन है ना, ये फ्री फॉलिंग बॉडी है, तो इसके लिए हम इनिशियल जो वेलोसिटी है वो हमेशा जीरो रहेगा, 0 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। तो ये वाला फॉर्मूला वी कैन अप्लाई। सो फ्रॉम वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2, इधर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसलिए हम जी लिख रहे हैं, और एच जो एस है तो इसको एच ही लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू जीरो 2 into 9.8, एच कितना है 20 मीटर इंटू 20, ये देखो क्या होगा, 9.8 क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो आई एम राइटिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच क्या है, एच है मीटर, ठीक है। ठीक है, चलो, तो ये क्या आया, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 इंटू 40, 40 मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। यही को अगर हम रूट करेंगे तो मीटर बाई सेकेंड आएगा, ठीक है ना। ओके, चलो, सो द वैल्यू इट्स कमिंग 342 4 9 हाँ 392 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एक क्या है, यह v, देखो इधर मैंने इक्वल्स टू करके लिखा, इंप्लाइज दैट नहीं दिया, तो अगर इसको इधर हम इंप्लाइज दैट दे तब v स्क्वायर, ये पूरा इक्वेशन लिखना है। ये नाउ v इक्वल्स टू रूट 392, अगर इसका भी रूट करे तो ये आएगा, मतलब इसका भी रूट करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आएगा मीटर पर सेकेंड। अगर देखो इसका रूट का वैल्यू, इसका जो रूट होगा तो ये पहले लिख लेते हैं मीटर पर सेकेंड। मेक श्योर द ऑल द यूनिट आर इनकरेक्ट। देखो मैं एकदम आसान तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, एकदम आसान। अगर इसका रूट कर सकते हो तो करो, नहीं तो इतना तक ही छोड़ दो। इसका अगर रूट करोगे तो ये वैल्यू आएगा, इस किसी को ये डिवीजन मेथड में सॉल्व होगा, हाँ डिवीजन मेथड में। तो 19.8 मीटर पर सेकेंड, यू कैन राइट अप्रोक्सीमेटली 20 ऑल्सो, अगर ये याद है। इफ यू कैन डू, इफ यू नो द डिवीजन मेथड हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ अ वैल्यू, देन यू डू इट, एल्स लीव इट, इधर ही छोड़ दो, इतना तक छोड़ दो। मीटर पर सेकंड लिखे, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, देखो इसका रूट किया तो मीटर पर सेकंड ही आया, एकदम सिंपल। अगर किसी को होगा तो करो, नहीं तो इधर ही छोड़ दो, फुल मार्क्स मिलेगा, कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, आई थिंक, और आई होप आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a rocket of mass 3 into 10 to the power 6 kg takes off from a launching pad and acquires a velocity। तो पहले डेटा गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन रॉकेट का मास दिया हुआ है 3 into 10 to the power 6 kg। ओके, लॉन्चिंग एक्वायर्स वेलोसिटी, वेलोसिटी है इसका 1 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाइट कितना है, एच इज ऑल्सो गिवन 25 किलोमीटर। देखो, सी हियर ऑल द यूनिट आर इन एसआई यूनिट ऑल्सो, और किलोमीटर और मीटर का कन्वर्शन किसको नहीं पता, वो पता नहीं। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, एसआई यूनिट लेंथ का, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कुछ-कुछ मैंने देखा है, किसी को नहीं पता। ये किलोमीटर लिख रहे हैं। अरे किलोमीटर इज़ अ बिगर यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। मीटर होता है, तो मीटर का अगर बड़ा है तो किलोमीटर कन्वर्ट, किलोमीटर इज़ नॉट द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। कोई भी एक्सप्रेशन आएगा वो मीटर पर सेकंड, मीटर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा ही आएगा। वो किलोमीटर में नहीं आएगा। तो इधर किलोमीटर, किलोमीटर है तो व्हाट वी कैन डू,
we can convert the velocity into meter per second. तो 1 kilometer per second equals to 1000 meter per second, है ना? सिंपली आई हैव जस्ट कन्वर्टेड 1 किलोमीटर टू 1000 मीटर। इधर 25 किलोमीटर है तो इसको भी हम 25 इंटू 1000 मीटर ले लेते हैं। बस ये जो पूरा सिस्टम है ये एसआई में आ गया। नाउ अब करो, पहले निकालना है पोटेंशियल। अच्छा, जी का वैल्यू भी दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चेंज करने का कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत ईजी है। चलो एकदम आसान है, देखो सब कुछ मीटर 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 में है। चलो, अगर किसी ने सोच रहे हो कि जी को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें क्योंकि ये सब किलोमीटर में, तो भाई एक्सप्रेशन नहीं आएगा, एक्सप्रेशन नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है, एक्सप्रेशन नहीं आएगा। तो अच्छा है बस जो किलोमीटर है उसको मीटर कर दो, हो जाएगा। चलो पहला जो क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो पहले हम निकाल लेते हैं। व्हाट वी नो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच। तो मास दिया हुआ है 3 इंटू 10 to the power 6, जी 10, एच 25,000। इतना आसान है। अब ये जूल में ही आएगा, पूरा जूल लिख लो, एकदम सब एसआई यूनिट में ही है, पूरा जूल में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 10 का जो पावर है ना इसको अलग से लिख लो, 3 इंटू 25, और 10 का कितना जीरो है, इधर 6 है, इधर 1 है, 7, 8, 9, 10, 10 to the power 10 जूल। 3 इंटू 25, 75 इंटू 10 to the power 10 जूल। बस हो गया, खत्म। दूसरा हाँ, क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। What we know, kinetic energy is equals to half into mv square. We know that the kinetic energy is equals to half into mv square. देखो मास भी है इधर और वेलोसिटी वो भी है 1000 में, तो चलो मास is given 3 into 10 to the power 6 into v स्क्वायर, वेलोसिटी का होल स्क्वायर है। तो वेलोसिटी का होल स्क्वायर क्या है इधर, 1000 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 1000 लिख लेते हैं इसका। अच्छा, इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस जो वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। वी शुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स, इसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, तो क्या दिया हुआ है गिवन, क्या क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेटिंग, ओके ओके ओके, एक्स 3 के मास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो एक्सीलरेशन क्या है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इज गिवन 3 केजी। अच्छा, तो इसका हम पहले फोर्स ले लेते हैं, कितना फोर्स है, तो इसका फोर्स क्या होगा, F1 इक्वल्स टू व्हाट वी नो, m इंटू, अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम A1 और इसको हम M1 कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। 3 इंटू 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 12 न्यूटन। हो गया, खत्म। दूसरा क्या है, दूसरे का मास जो गिवन, सेकेंड केस A2 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड M2
5 kg. M2 A2. So what will be the value? Mass 5 into 3, 15 Newton. Chalo, done.